अब तक आपने शरीर तथा किशोरावस्था के दौरान होने वाले बदलाव के बारे में जाना। हमने मासिक के विज्ञान तथा इसके प्रबंधन के बारे में जानकारी ली। अब हम साइकोसेक्सुअल चेंजेस यानी कि मनोयौन बदलाव और एक्सप्रेशन ऑफ सेक्सुअलिटी यानी कि लैंगिकता की अभिव्यक्ति की बात करेंगे। गर्ल्स, किशोरावस्था के दौरान सबसे अहम परिवर्तन है साइकोसेक्सुअल चेंजेस। इतने महत्वपूर्ण होने के बावजूद तथ्य और विश्वास पूर्वक यानी कि ट्रू एंड रिलायबल जानकारी पाना काफी परेशानी वाला काम है। आज के तकनीक के युग में इंटरनेट से किसी भी विषय की जानकारी आसान है, लेकिन यदि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको इंटरनेट से भी सही ढंग से जानकारी मिलने में परेशानी होगी। आप वीडियो में देखें कि यंगस्टर्स का यौन शिक्षा यानी कि सेक्स एजुकेशन और उसकी जरूरियात के बारे में क्या सोचना है। Yes, normally people think it is a taboo word because generally if we use this word in public, then most of people will think as a cheap impression on us. So yeah, it is a taboo word. Sex is not a taboo word, but accordingly we have learned that it's like a गाली. It is said like कि हम मानते हैं उसे ऐसे कि कोई भी बोलेगा oh you said this word, but if anyone will take it in a positive way, it is not a taboo word. બિલકુલ નહીં, ઇટ્સ અ નોર્મલ વર્ડ. આપણે એને ગંદો બનાવી દીધો છે બિકોઝ આપણે એને ગંદી રીતે જ જોઈએ છીએ. Yeah, for outer world it is. मैंने एक्चुअली इस बारे में कभी ज़्यादा सोचा नहीं है, ओके, बट आई थिंक कि एक सोसाइटी के रिलेटेड प्रॉब्लम है और लोग रेडी नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए। मैं समझता हूँ ऐसे थोड़े पार्ट्स में इट्स टैबू है और थोड़े पार्ट्स में ये शायद मिसकंसेप्चुअल बोल सकते हैं या तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग कि सेक्स वर्ड को अलग तरीके से लिया जाता है। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। नो, आई हैव नो आइडिया जनरली. Internet, books and Google, newspaper, Books, library books, novels, even newspaper, Google, internet. ફ્રેન્ડ્સ સાથે કોઈ ડિસ્કસ કરીને પેરેન્ટ્સ સાથે અને ગૂગલ કરીને ખબર પડી જાય. It's a social networking sites we can get from that. YouTube, medias, from our parents especially. If they share something with us, it is more advisable. Google gives you everything. Google it. इंटरनेट मोस्टली. ઇન્ટરનેટ. yeah, it should be a part of education. But normally colleges, schools don't take it in a brief way because they think that what the students will think about that. But I think they should be taught in detail so that they can know, because normally after the age of 18 and 16, the normally boys and girls comes in that situation when they have intimacy with each other, but then they should be taught in a detailed way so that they have the knowledge of that properly and don't misuse of that. हाँ, મને લાગે છે કે એ રાખવું જરૂરી છે. यस, हाँ होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी अगर एज में अगर बच्चे को अवेयर किया जाए तो काफ़ी जो सेक्सुअल कैलेमिटीज़ होती है वो अवॉइड हो सकती है. No, it should not be a part of syllabus, but students must be made aware every year for that. I think it should be part of school or colleges. Yes, according to me, it should be a part of a syllabus, so everyone will not think it as a question mark or a inverted comma like ki, oh you said this word. Everyone will take it in a normal way, and according to me, if it will be a course, it will be a good thing to know for everyone. Yes, definitely. जैसे मुझे आइडिया नहीं था तो वैसे बाकी लोगों को भी नहीं होगा. ઓબ્વિયસલી હોવો જોઈએ, બિકોઝ એનાથી ઘણા બધા ક્રાઇમ થતાં રોકાઈ શકાય. મને એવું લાગે છે કે અત્યારે જેટલા પણ ક્રાઇમ થઈ રહ્યા છે સેક્સને રિલેટેડ એટલા માટે નથી થઈ રહ્યા કે
લોકોને વધારે ઇન્ફોર્મેશન છે એની, એટલા માટે થઈ રહ્યા છે કે એ લોકોને પૂરતી પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન નથી હોતી. Yes, it should be. It is necessary. Because if we are not aware about this, suppose I am not aware about it, something may it happens and I am not aware about it. It's maybe bad for me. हाँ, अब मेरे ख्याल से अभी जो इरा है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से होना चाहिए. हाँ, होवो જોઈએ. Yes, definitely it should be a part of our school or college education. Yes, sex education should be a part of our vocational learning. It should be. बहुत सारे लोगों को ऐसा ही होता है कि कुछ आइडिया ही नहीं होता है कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है सेक्स एजुकेशन गर्ल्स के लिए मेनली. Yes, definitely it should be a part of the school or colleges. जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे यहाँ 21वीं शताब्दी में भी सेक्स के बारे में बात करते हुए लोगों को शर्म आती है. यही कारण है कि मैं आप सबको इस संबंध में सच्ची और वैज्ञानिक जानकारी देना चाहती हूँ. इस वैज्ञानिक जानकारी से आप सेक्सुअलिटी यानी कि लैंगिकता को लेकर सभी प्रकार के डर, पश्चाताप तथा शर्म भाव से मुक्त हो जाए. ज्यादातर समाज में सेक्स या लैंगिकता जैसे शब्दों को शर्म, डर और दोष भाव से जोड़ दिया गया है. इस शब्दों के साथ का ये अर्थ आपके जन्म से पहले जुड़े हैं. मैं चाहती हूँ कि आप इन सभी अनुचित बातों को हटाएं तथा इसे वैज्ञानिक रूप से समझें. आप में आत्मविश्वास आ जाए और आप एक लड़की हो इस बात को समझते हुए जिम्मेदारी पूर्वक अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाए. हम इसे जिम्मेदार यौन व्यवहार यानी कि रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर कहते हैं. आप इतने सशक्त हो जाए कि आप खुद यौन प्रताड़ना यानी कि सेक्सुअल हरेसमेंट को रोक सके तथा खुद को सुरक्षित रख सके. आप सेक्सुअलिटी के बारे में सकारात्मक तथा जिम्मेदार यानी कि पॉजिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल विचार कर सके.